کیا. یہ اختلافات کیوں؟ اتحاد ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، ہے کہ نہیں؟ تو کیسے اسٹیشن ایک ہے، الگ الگ ہے کہ نہیں؟ اسٹیشن حنفی ہے کہ نہیں؟ اب اس میں پلیٹ فارم نمبر 1 ہیں امام ابو یوسف ہیں، امام محمد رحمہ اللہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام ظفر رحمہ اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کہیں پر لوکل ٹرین چلتی ہے، کہیں پہ مال ڈبہ آتا ہے، کہیں پر فاسٹ ٹرین آتی ہے کہ نہیں؟ میل آتی ہے، آتی ہے نا. ہر ایک کا الگ الگ نظریہ، لیکن اصل ایک ہے، اسٹیشن وہ حنفی اسٹیشن ہے نا. تو ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ جب آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ کو وجہ اختلاف پتہ چل جائے گی کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے اختلافات ہو رہے ہیں، ہے نا. تو ایک ضابطہ بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے نا، ثم الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ انه متى شبه الطلاق بشيء يقع بين اي شيء كان المشبه به یا ایو شيء، ہے نا، كان المشبه به. ٹھیک ہے، ایا شيء نہیں کرے، خبر ہی بنا دیں، ہے کہ نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی طلاق کی تشبیہ کسی بھی چیز سے دی جائے، سمجھ نہیں، یعنی طلاق کو کسی بھی چیز کے مشابہ قرار دیا جائے تو طلاق کون سی ہوگی؟ بائن. ٹھیک ہے، جب قو بائنا کون سی طلاق پڑے گی؟ بائن واقع ہوگی. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ مشبہ بھی چاہے جو ہو، سمجھ میں آئی. اب جو کرل عزم ہے نا اولم یذکر، چاہے عظمت کا ذکر ہو یا نہ ہو. عزم ہے نا، یعنی عظمت، عظیم ہونے کا ذکر ہو یا نہ ہو. تو عظیم ہونے کا ذکر ہو یا نہ ہو، یہ قید کیوں لگائی گئی؟ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مشبہ بھی، جس سے طلاق کی تشبیہ قائم کی جا رہی، مشبہ طلاق جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ نہیں. تو وجہ تشبیہ آپ تو پڑھ چکے ماشاءاللہ، مشبہ بھی وجہ تشبیہ وغیرہ ہے نا. تو وجہ تشبیہ عظمت ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک کہ وجہ تشبیہ کا ذکر نہیں ہوگا، یعنی عظمت کا ذکر نہیں ہوگا، تب تک کہ طلاق رجعی رہے گی. سمجھ میں آئی؟ اگر بڑائی کا ذکر ہو گیا، بھلے وہ چیز بڑی نہیں ہے، حقیقتاً واقعتاً خارجاً وہ چیز بڑی نہیں ہے، نفس الامر میں اس چیز کو بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے، عرف عام میں اس کو بڑا نہیں شمار کیا جاتا ہے، لیکن عظمت کا ذکر ہو گیا نا. جیسے کسی نے کہا کہ تجھے اس باریک نقطے جیسی بڑی طلاق، بڑی کہا نا اس نے، بڑائی کا ذکر کیا نا. اب نقطہ کیا بڑا ہوتا ہے؟ فل اسٹاپ جو ہے لگا ہے تو کیا وہ بڑا ہوتا ہے کوئی؟ 5-6 فٹ کا ہوتا ہے؟ نہیں نا، بہت چھوٹا مختصر ہوتا ہے. لیکن اس نے بڑائی کا ذکر کیا، اس کے الفاظ میں بڑائی پائی گئی، لہذا طلاق بائن ہوگی، جبکہ بڑائی کا ذکر. اور امام ظفر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نہیں، عند الناس، عرف میں جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اگر اس کو مشبہ بھی بنایا، اگر اس سے طلاق کی تشبیہ دی، سمجھ میں آئی، تو جا کر کے طلاق بائن. سمجھ میں آئی؟ تو ذکر العظم یعنی کہ چاہے عظمت کا ذکر کیا جائے، تو یہ اعتراض ہوا کس کے قول سے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول سے، کہ ان کے نزدیک عظمت کا ذکر ہوگا تو بائن ہوگی، ورنہ نہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کی کوئی قید نہیں لگاتے، چاہے عظمت کا ذکر ہو یا نہ ہو. سمجھ آئی؟ نہ ہونے کی بنیاد پر اگر عظیم سمجھی جاتی ہو عند الناس، لوگوں کے مابین، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک بائن ہوتی ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی کوئی قید نہیں ہے، چاہے عظمت ہو عند الناس اس کی ہو یا نہ ہو، چاہے عظمت کا ذکر بھی ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بس تشبیہ قائم کی گئی نا، طلاق کو کسی چیز کے مشابہ قرار دیا گیا نا، بس اس تشبیہ کی بنیاد پر وہ طلاق بائن ہو جائے گی. اب دیکھیے ضابطہ، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرے قاعدہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
जब तलाक की तशबीह किसी भी चीज से दी गई हो तो तलाक बाइन होगी, चाहे मुशब्बा भी कुछ भी हो, चाहे अजमत का जिक्र हो या ना हो। लिमा मर्रा, इसलिए कि ये बात गुजर चुकी है कि तशबीह वस्फ की ज्यादती का तकाजा करती है, ठीक है नहीं। तशबीह, अब भाई अब तशबीह हम किसी को भी किसी चीज के मुशाबे करार देते हैं, है कि नहीं, तो अक्सर बेशतर हमारे उर्फ में क्या होता है, उसमें उस चीज का इजाफा मौजूद है ना, उसके, हाँ, यानी कि इस मामले में तू क्या है, बढ़ा हुआ है, बोले ना ये शेर जैसा है, यानी आप किसी ना किसी चीज में जाती कर रहे हो ना, उसकी बहादुरी में, उसकी जसारत, है कि नहीं, कर रहे हो ना जाती, ज्यादती पाई जा रही तभी तो कर, ये गधा है, गधे जैसा है, तो क्या मतलब है, उसमें बड़ाई जाती है ना, यानी गबावत ज़ानी के आला मेयार पर फायज है, गबावत ये बता रहे हैं, है कि नहीं। तो लिमा मर्रा अन्ना तशबीहा, ये बात गुजर चुकी है कि तशबीह जो होती है वो वस्फ की ज्यादती का तकाजा करती है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक कि अगर अजमत का जिक्र किया गया हो, है ना, अब अजमत चाहे जिसके जरिए, है ना, शिद्दत के जरिए अजमत जिक्र की जाती है, कभी अजीम का लफ्ज ला करके भी अजमत जिक्र की जाती है, कभी कबीर का लफ्ज भी ला करके अजमत जिक्र की जाती है ना, अजमत को जिक्र करने वाले बहुत से अल्फाज, तो अजमत का जिक्र अगर होगा तो ही तलाक बाइन होगी, लंबी चौड़ी, है कि नहीं, सख्त, ये सब क्या है, अजमत को बयान करने के लिए ना, बात समझ में आई। तो ये कह रहे हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस बात की कैद लगाई है कि, है ना, अजमत का अगर जिक्र होगा, बड़ाई का अगर जिक्र होगा तो ही बाइन होगी, वइल्ला फला, वरना तो नहीं, है कि नहीं। अय्या शैइन कानल मुशब्बह भी, मुशब्बह भी चाहे जो हो, यानी मुशब्बह भी चाहे छोटी ही चीज क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने बड़ाई का जिक्र किया है, लफ्ज बड़ाई का, है ना, चाहे उर्दू में इस्तेमाल करे या अरबी में इस्तेमाल करे, है ना, दोनों सूरतों में क्या है, अगर मुशब्बह भी, है ना, अगर उसने अजमत का जिक्र किया है तो वो तलाक बाइन होगी, समझ में आई। अब मुशब्बह भी की तरफ नजर नहीं की इन्होंने, मां सरफे नजर मुशब्बह भी की, समझ में आई। मुशब्बह भी चाहे जो हो, तो वही कहा अय्या शैइन कानल मुशब्बह भी, कि मुशब्बह भी चाहे जो हो, लेअन्न तशबीह कद यकूनु फी तवहुद अला तजरीद, इसलिए कि कभी कभी तशबीह जो होती है वो अजमत के माने से खाली करके एक एकताई बयान करने के लिए होती है, समझ में आई? जैसे कि अभी जबल के वाले कहा था ना हजरत ने, पहाड़ जैसी तलाक, है ना, तो हजरत ने कहा था कि यकताई तो बयान हो सकती है, कभी कभी ये भी मुराद होती है ना, जैसे पहाड़ एक है वैसे तेरी तलाक एक है, तो वहां अजमत वो मुराद नहीं लेना चाहता है, बल्कि क्या है, उसकी यकताई बयान करना चाहता है, कि जैसे उसके लिए क्या है, यकताई है, ऐसे ही तेरी तलाक के लिए यकताई है, यानी तेरी तलाक जैसे उनकी वो एक है वैसे तेरी तलाक एक है, तो अजमत के माने से तजरीद करता है, यानी खाली करता है उसको, समझ में आई। वहां अजमत का माना मुराद नहीं लेता है, बल्कि उसकी क्या मुराद देता है, यकताई, उसकी वहदानियत मुराद देता है, समझ में आई बात, समझ में आ रही है। तो कह रहे इसलिए कि तशबीह कभी कभार तजरीद की बुनियाद पर तवक्कुद में होती है, यानी कि अजमत के माने से खाली करके एक माना को बयान करने के लिए तशबीह कायम की जाती है कि नहीं। अच्छा, अम्मा इज़्ज़मी और अजमत का जिक्र फल ज़ियादती ले मुहाला, तो ये तो बता ही रहा है, सरीही तौर पर बता रहा है कि कतई तौर पर ये ज्यादती के लिए है। अजमत उसने जिक्र किया, इसका मतलब उसको अजीम कह करके, है ना, अजीम शुमार करके कह रहा है ना, समझ में आई भाई, अगरचे वो अजीम हो या ना हो, लेकिन उसका अजमत कहना ही गोया कि वो तलाक को अजीम बनाना चाहता है, और तलाक में अजमत कब आएगी, जब वो बाइन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक के साहिब ने अजमत का जिक्र नहीं किया होगा तब तक कि हम किसी मामले को लेकर के फैसला नहीं कर सकते, जो तलाक सरीही का मसला होता है वही तलाक सरीही यानी तलाक रजी वाक़ई बाइन नहीं होगी, समझ में आई। वइंदा ज़ुफ़र, और इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह के नजदीक इन कानल मुशब्बह भी मिम्मा यूसफ़ु बिल इज़्ज़मी इंद अन्नास यक़उ बाइना, है ना, मैंने बता दिया कि अगर मुशब्बह भी उन चीजों में से है जो लोगों के नजदीक अजीम शुमार की जाती है, जिसको अजमत से मौसूफ किया जाता है, मुत्तसिफ किया जाता है, क्या मतलब, जो लोगों के यहाँ, लोगों के माबैन अजीम शुमार की जाती है, तो वो ऐसी सूरत में मुशब्बह भी अगर ऐसी चीज हो तो यक़उ बाइना, तो तलाक कैसी हो जाएगी, बाइन होगी, समझ में आई। हाँ, इमाम ज़ुफ़र यानी फीमा बैन अन्नास, अगर वो तलाक क्या है, है ना, वो मुशब्बह भी क्या है, अजीम है,
लोगों में अजीम, जैसे पहाड़ रहा अजमत का जिक्र करना, यानी अजीम होने का जिक्र करना, है कि नहीं? किसका? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का वो कहना है। अजमत का जिक्र करना यानी कि कभी कभी क्या है, आदमी जैसे कि मिसाल के तौर पर पहाड़ से उसने तशबीह दी ना कि तुझे पहाड़ जैसे तलाक, तो इसमें दो एहतिमाल हो सकते हैं, या तो उसकी ज्यादती में है कि नहीं, शिद्दत पैदा करना चाहता है तलाक में, या तो तलाक को एक ही रखना चाहता है कि जिस तरीके से पहाड़ एक है। लेकिन जब उसने कह दिया पहाड़ जैसी बड़ी तलाक, तो अब इसका मतलब ये है कि वो कतई तौर पर अब यहाँ पर कोई चूचेरा की गुंजाइश नहीं रहेगी। उसने तो वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पहाड़ बोलने से मुराद उसकी क्या है, ज्यादती बयान करनी है। तो वही कहा क्या रहा अजमत का जिक्र करना, यानी शौहर ने अगर अजमत का जिक्र कर दिया तो कतई तौर पर ये ज्यादती के लिए होगा कि नहीं होगा? वरना वो बड़ा ही क्यों करता है, समझ में आई? अच्छा, तो इसी वजह से कहा कि अजमत का जिक्र है, अगर बड़े होने का जिक्र है ना, बड़कपन पता चल रहा है उसके अल्फाज में, किसी भी वो बड़कपन, मैंने कहा ना, वो चाहे जो भी लफ्ज इस्तेमाल करे, लेकिन उस लफ्ज से क्या है, बड़ाई अगर जाहिर हो रही है, मुशब्बा भी से हो या ना हो, मुशब्बा भी बड़ी हो या ना हो, वो चीज बड़ी हो ना हो, उससे लेना देना नहीं है। अजमत पर दलालत करने वाला कोई भी लफ्ज अगर वो जिक्र कर रहा है, समझ में आई? तो अब बहरहाल अजमत साबित होगी। और तलाक की अजमत कब होती है? जबकि उसको अजमत कब मिलती है तलाक को? जब बाइन होगी ना, तभी तो बैनूनत के जरिए उसकी अजमत कायम है ना। तलाक की भी अजमत है कि नहीं? है, लेकिन कब बैनूनत, वो अजमत नहीं समझेंगी, है ना। जैसे कि मस्जिद हराम है ना, तो हुर्मत वाली हराम है ना, वो हराम नहीं जो नाजायज है ना, जिससे मतलब शरीयत ने मना किया, रोका है, वो हराम नहीं है ना। हुर्मत, फजीलत, खुसूसियत, अफजलियत, अफजलियत है ना, ये है मस्जिद हराम। जैसे हमारे एक उस्ताद ने दौरान दर्स कहा कि मैं हरामी हूँ, बहुत बड़ा हरामी, तो कहा वो हुर्मत वाला हरामी हूँ, हराम वाला हरामी नहीं। ठीक है, अरे हुर्मत वाला है ना। अशरफिया मुबारकपुर में शायद आपने नाम सुना होगा, मुफ्ती बदर आलम साहब किबला मुंतज़िल व नूरानी। तो यानी मजाक में बहुत से उलूम ऐसे ही देते हैं ना, वो कहते हैं ना, मतलब एक वो भी हो गया और एक इल्म में इजाफा भी हो गया, है कि नहीं? बहरहाल इंदा ज़फ़र, इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह के नज़दीक क्या है, अगर मुशब्बा भी उन चीज़ों में से है जो लोगों के नज़दीक अजीम शुमार की जाती है ना, मुशब्बा भी अजीम शुमार किया जाता है, चीज़ है मुशब्बा भी कि अजीम शुमार किया जाती है, तो यक़ो बाइना, तो तलाक बाइन होगी, वो इल्ला फहुवा रजईयुन, वरना तो वो रजई होगी। समझ में आई? जी। और ये कहा गया है, एक मिनट, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज ठोकी, इमाम में मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल तो बयान नहीं हुआ ना, है ना। हाँ, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का ज़ाब्ता क्या है? तो कह रहे हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के बारे में ये कहा गया कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ है, यानी जो कहना, जो ज़ाब्ता क्या है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का है, वही ज़ाब्ता क्या है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक है। और ये भी कहा गया कि वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ है, यानी दोनों क्या है, एक ही ज़ाब्ता बयान करते हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह। तो ये मतलब उनके कौल में क्या है, शक है कि किसके साथ हैं। बहरहाल लेकिन जितने अक़वाल अभी तक बयान हुए यकीनी बयान हुए कि इनका ये कहना है इस सिलसिले में, इनका ये कहना है, इनका ये कहना है, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है ना, कौल में क्या मुतरद्दिद है, मशकूक है कि नहीं। वो बयान हो, उसका बयान है ना। अब आपको जैसे कि मिसाल के तौर पर तमाम अक़वाल की जानकारी होगी, तमाम के ज़वाबित है ना, ज़ाब्ते मालूम पड़ गए ना। अब इसका मतलब समरा कहाँ पर जाहिर होगा? जैसे आपने पढ़ा है ना, जैसे इमाम शाफी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ होता है तो तफरीक बयान करते हैं। तफरीक बयान करने का मतलब है इसका समरा कहाँ पर जाहिर होगा, है ना। कैसे मसाइल में इख्तिलाफ होगा, कहाँ कहाँ पर मसाइल में इख्तिलाफ होगा हमारे और इमाम आज़म है ना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक, है कि नहीं। मसाइल में इख्तिलाफ होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है
जब इनके अक़वाल तो बयान हो गए, इनके ज़ाब्ते तो बयान हो गए, तो इनका इख्तिलाफ कहाँ पर क्या है रूनुमा होगा, कहाँ पर दिखाई देगा? तो कह रहे जैसे कि है ना, अंति तालिकुन रासल इब्रा, है कि नहीं, या मिसला इज़्मे रासल इब्रा, या मिसलल जबली, मिसला इज़्मे, है ना, इज़्मे जबली। तो अब यहाँ पर क्या है, अब अगर किसी ने कहा अंति तालिकुन रासल इब्रा, तो बताइए किसके नजदीक पड़ेगी तलाक? बाइन। तर्जुमा क्या रहेगा? तर्जुमा क्या रहेगा? सुई के सिरे की तरह तलाक, है ना, तुझे सुई के सिरे की तरह तलाक, मिसला रासल इब्रा, है कि नहीं? तो हमारे नजदीक भी वही, हमारे नजदीक भी सुने ध्यान से पहले सुन लीजिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक तलाक़े बाइन होगी, और बाकी इमाम ज़फ़र, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक कौन सी होगी? रजई होगी। क्यों? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक रजई होने की वजह क्योंकि अज़मत का जिक्र नहीं हुआ, और इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह के नजदीक रजई होने की वजह क्योंकि इसमें रासे इब्रा कहा गया है। रासे इब्रा इंदर नास क्या है? अज़मत से मौसूम नहीं की जाती, अज़मत से शुमार नहीं की जाती। रासे इब्रा क्या बहुत बड़ी चीज है, लोग उसको बड़ा शुमार करते हैं, नहीं ना। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक क्यों पढ़ रही है बाइन? इसलिए कि तशबीह पाई गई, तशबीह है ना, मुशब्बा भी चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, इससे लेना देना नहीं है ना। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक इस सूरत में क्या होगी? तलाक़े बाइन पड़ेगी, और बाकी जो दो इमाम, इमाम ज़फ़र, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह है, उनके नजदीक कौन सी पड़ेगी? रजई पड़ेगी। रजई पढ़ने की वजह बता दी मैंने, समझ में आ गई ना? अब अगर ये मिसला है ना इज़्मी रासिल इब्रा कहा, तो अब बताइए किसके नजदीक? क्या तीनों के नजदीक रजई ही पड़ेगी, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक बाइन, और हमारे नजदीक भी बाइन। इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह के नजदीक इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह के नजदीक कौन सी पड़ेगी? रजई पड़ेगी ना? जी रजई पड़ेगी। इंदर नास इसको बड़ा नहीं शुमार किया जाता है, हाँ, बड़ा नहीं शुमार किया जाता है ना। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक क्यों पढ़ रही है बाइन? का जिक्र इसलिए कि अज़मत का लफ्ज़ आ गया ना। और इमाम आज़म के भी नजदीक रहमतुल्लाह के नजदीक भी कौन सी पढ़ रही है? क्यों? तशबीह पाई गई, तशबीह पाई गई, बस तशबीह होनी चाहिए, है ना, तशबीह हो गई ना, हाँ, तलाक़े बाइन हो। और मिसलल जबली, पहाड़ जैसी तलाक अगर कहा तो अंति तालिकुन मिसलल जबली, हाँ, तो इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह के नजदीक वो बाइन पड़ जाएगी, अबू यूसुफ के नजदीक नहीं, जबल पड़ेगी। इमाम अबू यूसुफ के नजदीक नहीं होगी, और इमाम ज़फ़र, इमाम आज़म के नजदीक तलाक हो जाएगी, तलाक़े बाइन। हाँ, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक क्या है? बाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अज़मत का जिक्र नहीं हुआ, है ना, और उनके नजदीक इंदर नास होने की वजह से, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक तशबीह होने की वजह से, है कि नहीं, बाइन पड़ेगी। मिसला इज़्मिल जबली, यहाँ पर बताइए, नजदीक बाइन पड़ेगी, तीनों के नजदीक बाइन पड़ जाएगी, है ना। तशबीह की वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक, और अज़मत का जिक्र होने की वजह से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, और जबल जिक्र होने की वजह से इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह के नजदीक, है ना, क्योंकि जबल इंदर नास क्या है? अजीम है ये। जी, समझ में आ गई ना बहनी? वलो क़ाल अंति तालिकुन ततलीक़तन शदीदतन औ अरीदतन औ तवीलतन फहिय वाहिदतुन बाइनत। और अगर शौहर बीवी से कहे कि तुझे एक लंबी, है ना, एक सख्त तलाक या चौड़ी तलाक या लंबी तलाक, तो एक ही तलाक होगी, लेकिन वो तलाक कैसी होगी? तलाक़े बाइन। समझ में आई? है ना, यानी कि तू सख्त तलाक वाली है, या चौड़ी तलाक वाली है, लंबी तलाक वाली है, समझ में आई? तो एक पड़ेगी, लेकिन कैसी? बाइना पर। अच्छा, इसमें भी वैसे रहेगा, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम आज़म रहमतुल्लाह का कौल सब। अब यहाँ पर तशबीह नहीं दे रहा ना भाई जी हज़रत, तशबीह नहीं दे रहा, वो सिफत बयान कर रहा है सिर्फ। समझ में आई? तशबीह के लिए, तशबीह में अब क्या है? चलिए
है ना, अगर हम इसको तशबीह में ले जाए तो ले भी जा सकते हैं, तो वही रहेगी अगर ले जाना चाहें तो, लेकिन ले जाने की जरूरत क्या, सिफत है ना, समझे। इमाम साहब पहले रखना चाहिए। देखो तशबीह कायम क्यों की जाती है, कभी कभी तशबीह है ना, अक्सर ये होता है कि मुशब्बा भी में उस वक्त की ज्यादती होती है ना, तो मुशब्बा भी में उसी वक्त को क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है मुशब्बा में, है ना। मुशब्बा भी में उस वक्त की जाती है, जैसे कि हमने कहा शेर की तरह, तो शेर की बहादुरी जैसी बहादुरी है इसमें नहीं ना, लेकिन क्या है उस जैसा थोड़ा सा वक्त पा लिया गया तो हमने कह दिया शेर जैसा है ना, लेकिन शेर जैसी जसारत ना होनी। हाँ, जैसे कि एक साहब ने साहिब ने, हो जाएगी बात, अपने पहले मुकम्मल कर ले। वलो काल अंत तालिकुन ततलीक़तन शदीदतन अव अरीदतन अव तवीलतन, है ना, अगर कह रहा है कि तुझे एक सख्त तलाक है या चौड़ी तलाक है या लंबी तलाक है, समझ में आई, तो एक ही पड़ेगी लेकिन बाइन ना होगी। करे लिअन्ना मा ला युमकिनु तदारुकुहु यश्तद्दु अलैहि वहुवल बाइन, इसलिए कि जिसका तदारुक मुमकिन ना हो सके, यानी जिसकी भरपाई ना हो सके, समझ आई, जिससे रुजू ना ला सके, समझ आई, तो वो शौहर पर क्या होती है, सख्त होती है, समझ आई, वही चीज सख्त होगी ना। तो सख्त तलाक कहने का मतलब क्या है कि ऐसी तलाक देना चाहता है जिसके बाद उसको रजत का इख्तियार बाकी ना रहे, और वो कब हो सकता है, जबकि इसको क्या माना जाए, बाइन माना जाए, तभी तो हो सकता है ना। तो वही कह रहे कि लिअन्ना, इसलिए कि वो चीज जिसका तदारुक ना हो सके वो शौहर पर गिना होती है, और यहाँ पर सूरत मसला ये, इसमें कौन सी चीज हो सकती है, वो बाइन हो सकती है ना। और कह रहे उमा ये साबु तदारुकुहु, और जिसका तदारुक मुहाल तो नहीं होता है, नामुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि हादल अमर तूलुन व अर्जुन, ये मामला बड़ा संगीन है। संगीन मामले के लिए कहते हैं ना कि बहुत लंबा चौड़ा मामला है यार, ये बहुत प्रोसेस है इसके, है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हाँ, इसके लिए क्या बहुत से मराहिल तय करने पड़ेंगे। होता है ना, जब मगज को बाग में जानने ना दीजिए कि नाहक खून परवाने का होगा, तो परवाने का खून कितने दूर के बाद होगा, हाँ, जाएगा वहां से फूल का रस चूसेगा, हाँ, जाके छत्ता बनाएगा, मोम बने हैं, मोम से फिर क्या मोमबत्ती बने, मोमबत्ती जलाई जाएगी, परवाने आकर के जलेंगे, हैं, तब जाकर के परवाने का जलना हुआ, है कि नहीं। तो कह रहे कि वमा यसाबु तदारुकु युकालु लिहादल अम्र तूलुन व अर्जुन, और जिसका तदारुक मुश्किल होता है कहा जाता है कि इस अम्र के लिए तूल है और अर्ज है, तो इसका तदारुक क्या है, यानी कि वो चीज नामुमकिन तो नहीं होती है लेकिन बहुत मुश्किल होती है, तो उस अम्र के लिए क्या कहा जाता है कि ये अम्र क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये मामला बहुत ही नाजुक है, बहुत मतलब दूर तक फैला हुआ है, समझ में आई। तो ये चीज कहाँ पर हो सकती है, बाइन में, यानी आप बाबे तलाक में अगर इसको इस सिफत को जिक्र कर रहा है, तो ये चीज यानी कि जिसका तदारुक मुश्किल हो, समझ में आई, मुश्किल से जिसको क्या है अपनाया जा सके, जिसको हासिल किया जा सके, वो किस में होता है, बाइन में होगा ना, क्योंकि उसमें बाहमी रजामंदी जरूरी है, तलाक बाइन के बाद बाहमी रजामंदी जरूरी है, और रजई में क्या बाहमी रजामंदी की कोई जरूरत थी, औरत के ना चाहते हुए भी वो रजत कर सकता था ना, लेकिन बाइन में क्या है, मामला थोड़ा दुश्वार हो जाता है, होता है ना। तो इसी वजह से अरीजा कहे या तवीला कहे, तो दोनों सूरतों में भी बाइन, समझ में आई। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अन्नहु यक़उ बिहा रजइया, कि तलाक रजई पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये वस्फ जो है ये इसके लायक है ही नहीं, क्योंकि अर्ज है ना, अरीज होना, तवील होना, शदीद होना, ये सब क्या है, ये महसूसात की एक कबिल से ना, महसूसात के वस्फ बयान किए जाते हैं इससे। ये तलाक क्या महसूस चीज है, गैर महसूस है ना, एक मानवी चीज है, समझ में आई। तो अब भाई जिसका जो वस्फ ना हो, उस वस्फ के साथ उसको मुत्तसिफ किया जाए तो क्या होगा, वो वस्फ लग होता है ना, बेकार होता है ना, बात समझ में आई जी। अब कोई कहे कि खुशी के है ना, जैसे कि मारे गम के है ना, मारे खौफ के वो क्या है, लहूलहान हो गया, अरे यार गम के मारे लहूलहान हो गया, ये गम के मारे लहूलहान हो गया, ये सिफत उसकी बनने के लायक है नहीं। लहूलहान कब बोलते हैं, किस के लिए, या पीला लाल पीला हो गया है ना, तो लाल पीला कब बोलते हैं, बोले मरने की वजह से वो लाल पीला हो गया, अरे लाल पीला यहाँ मरने के लिए ये सब जिक्र किया जाता है, ये बस मरने वाले के लिए जिक्र किया जाता है, हाँ। और बोले कि
मौलाना अफरोज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब भाई ये किसके लिए होता है? मरहूम के लिए है कि नहीं? हाँ, बात समझ में आ रही है? ये बस उनके लिए होता है। हालांकि सही बात तो हक है, लेकिन बात है रुसवाई की, कि नहीं? Yes, समझ में आ रही? जैसे कुछ लोग कहते हैं अलैहिस्सलाम, बहुत लंबी बात हो जाएगी उस पर, है ना? हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, पर छोड़िए। लिअन्न हाज़ल वस्फ़ ला यलीक़ु बिही फ़यलुहु, इसलिए कि ये वस्फ क्या है, इसके लायक ही नहीं, समझ में? यानी तलाक के लायक ही नहीं। फ़यलुहु तलाक होगा, बेकार है कि नहीं? तो बेकार होगा तो अंत तालिक बचेगा ना, तो अंत तालिक से कौन सी तलाक पड़ती? तलाक है तो यही पड़ती है, खत्म। है कि नहीं? क्या जवाब देते सर? हाँ, हमारी तरफ से उनकी इसका जवाब क्या है? किसका? ये ना हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक से तलाक रज़ई पड़ती है, हमारे नजदीक बाइन पड़ती है। तो हाँ। इन्होंने जो दलील दी नजरत हमारी दलील तो पहले ही जिक्र कर दी ना हजरत आपा, हमारी दलील तो पहले ही जिक्र कर दी ना, समझ में आई? ये तूल और अर्ज जो है वो गर्चे अक्सर और बेशतर महसूसात के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गैर महसूस के लिए भी क्या है, कभी कभी महसूसात वाले वस्फ लाए जाते हैं ना। जबकि गैर महसूस चीज क्या है, महसूस के दर्जे में उतार करके कलाम किया जाए। हाँ, होता है ना कभी कभी। जैसे कि मुसन्निफ अल्लाह हम जब शुरू किताब करते तो आप कहते हैं ना कि हादा, हाँ, हादा फी फन्निल मुनाजरा या हादा फी फन्निल नहवी, तो बोले हादा से इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? अभी तो किताब हजरत ने लिखी नहीं, हजरत तो लिखने जा रहे हैं, अभी तो ये दिबाचा है, हजरत खुतबा बयान कर रहे हैं, खुतबे के बाद वाली बात को बयान कर रहे हैं, और किताब लिखी नहीं, तो हादा से इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? वो चीज तो मालूम है, अभी खत है ना। तो बोले कि हजरत के जहन में जो चीज मुरतब तरीके पर मौजूद है ना, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो गैर महसूस है ना वो। तो हादा के जरिए इशारा किसकी तरफ होता है? महसूसात की तरफ होता है ना। लेकिन वो गैर महसूस क्या है, इतना हद दर्जा उनके जहन में मुस्तादर है कि उन्होंने उस महसूस का इशारा गैर महसूस की तरफ कर दिया। समझ में आई? अरे करते हैं ना, मुकर्रिरीन भी बयान करते हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना, यजीद के लश्करों को काटते हुए चले जा रहे गाजर मूलियों की तरह, ऐसा लग रहा है कि वही बैठ करके हजरत बयान कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि हाँ ये कटा, हाँ वो गिरा, वो मरा, ये हुआ, तो है ना, बयान करते हैं है कि नहीं? बयान करने का अंदाज। अरे हाजिरी, अरे पहले थोड़ा सा बाकी रह गया। अच्छा पहले हाजिरी ले लूं, हाजिरी जरूरी है ना। कि जो शदीदा या अरीदा या तवीला जैसे अल्फाज से है ना उसको मौसूफ कर रहा है तलाक को, तो अब ऐसी सूरत में अगर उन्होंने 3 तलाक की अगर नियत कर ली इन सूरतों में, अभी वो चाहे शदीदा हो, अरीजा हो, है ना, जबल वाली सूरत है, इससे पहले जितनी भी सूरतें, मिलाल बैत वाली है कि नहीं, घर भर वाली है, जितनी भी सूरतें गुजरी अब तक, यानी इन तमाम सूरतों में अगर वो 3 की नियत कर रहा है तो उसकी नियत सही मानी जाएगी। क्यों? लितनव्विल बैनूना, बैनूनत के मुनक़सिम होने की वजह से। मैंने बताया इससे पहले, है कि नहीं? बैनूनत की 2 किस्में हैं, एक वो बाइन जिससे निकाह की जरूरत पेश आती है, और एक वो बाइन जिसमें हलाले की जरूरत आती है। समझ आई? लेकिन उसको मुगल्लज़ा के नाम से याद किया जाता है, लेकिन है वो भी बाइन, वो भी अलहदा करने वाली है, वो भी जुदा करने वाली है, लेकिन ऐसी जुदाई की जो कि बगैर हलाले के क्या है, रुजू का एहतिमाल नहीं रखती। समझ आई? लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ निकाह की जरूरत पेश आई। समझ में आ रही है? तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फाज अभी तक जिक्र हुए हैं, ये सब के सब शिद्दत पर दलालत करने वाले अल्फाज हैं, जब शिद्दत को बता रहे हैं, ज्यादती को बता रहे हैं। तो अब क्या है, हमने देखी शिद्दत दोनों में पाई जा रही है। शिद्दत का मामला क्या है, तलाक बाइन में भी है और मुगल्लज़ा में भी है, और मुगल्लज़ा भी एक किस्म की बाइन ही है। तो हमने देखा कि बाइन की 2 किस्में निकलती हैं, तो हम किस पर लेके जाते हैं, इसको अकल पर ले जाते हैं। जहां तक क्या है मसला हल हो जाए तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, समझ नहीं? तो तलाक बाइन पर जब मसला हल हो जा रहा है तो उसको मुगल्लज़ा बनाने की जरूरत नहीं, समझ में आई? तो इसीलिए कहा कि अगर वो 3 तलाक की नियत कर रहा है तो तीनों तलाकें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बैनुनत की 2 किस्में हैं। अब जब वो अपने नियत ही से क्या है, बैनुनत की आखिरी किस्म मुराद ले रहा है, सबसे एंड वाली, तो अब वो क्या है, उस पर हुक्म नाफिज किया जाएगा, उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा, यानी 3 तलाकें नाफिज कर दी जाएगी। ठीक है? तो कह रहे कि अगर तीनों तलाक की नियत की है इन तमाम सूरतों में तो उसकी नियत सही होगी। क्यों? बैनुनत के मुनक़सिम होने की वजह से, किस्म दर किस्म होने की वजह से, अला मर्रा, जैसा कि ये बयान गुजर चुका है, वला वाक़िउ बिहा बाइन, और इन तमाम अल्फाज के जरिए जो तलाक पड़ेगी, यानी जितने भी अल्फाज अब तक जिक्र हुए, जितने भी जो तलाक पड़ेगी वो कौन सी होगी? बाइन होगी। तलाक बाइन। समझ में?
चलिए, कुछ पूछना है? हजरत वहाँ